पर एक वर्ड आया है जेनोसिडियल. इट इज ऑन द पेज नंबर 50. ओपन योर पेज नंबर 50 स्टूडेंट्स. In old book, please open your page number 50. That is Yes, ma'am. genocidal war. Genocidal war. Germany had waged a genocidal war which resulted in the mass murder of selected group of innocent civilians of Europe. And the number of people killed included 6 million Jews, 2 lakh gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 German who were considered mentally and physically disabled, besides innumerable political opponents. Nazis devised an unprecedented means of killing of people, that is by gazing them. All these has given in our book कि जेनोसिडियल वॉर क्या होती है, किस तरीके से जो नाजीज थे उन्होंने किस तरीके से क्या किया था, जूस लोगों को मारा था. ये सब चीजें इसमें आपके बिल्कुल क्लियर दी हुई हैं. Is it clear? Now we are coming on the next topic. That is an important topic. That is a Treaty of Versailles. हमने पढ़ी थी वर्सलिस की ट्रीटी. We already talked about the Versailles Treaty. Students, Yes, ma'am. हम लोगों ने बात कर ली थी वर्सलिस ट्रीटी की. क्या था वर्सलिस ट्रीटी? मैम अलाइज ने जर्मनी पे जो लगाया था. Versailles with the Allies was a harsh and humiliating peace. Germany lost its overseas colonies. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन जो था वो क्या हार चुका था, अपने आप को पूरी तरह से अपनी जितनी भी कॉलोनीज थी उनको हार चुका था. इसके अलावा he lost his 1/10 of its population. उसने अपनी 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो था 1/10 जो पार्ट था पॉपुलेशन का उसको क्या कर चुका था, वो लूज कर चुका था. 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 75% of its iron, 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania. And the Allied powers demilitarized Germany to weaken its power. जो Allied power थी उन्होंने जर्मनी की मिलिट्री पावर जो थी उसको पूरी तरह क्या कर दिया था, उसको पूरी तरह डिमोलिश कर दिया, पूरी तरह डीमिलिटराइज कर दिया. Is it clear? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्रीटी के अंदर जो अलाइज ग्रुप थे वो किसको इस वॉर के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे? Who was the main responsible for this war? जर्मनी. जर्मनी. सो जर्मनी को इस तरीके से कल्प्रिट मानने की वजह से उन्होंने उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, पूरी तरह से उसकी पावर को वीकन कर दिया. जो अलाइज ग्रुप थे उन्होंने जर्मनी की पावर को पूरी तरह से क्या कर दिया, वीकन कर दिया. एंड द अलाइड आर्मीज आल्सो ऑक्यूपाइड रिसोर्सेज रिच रेनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920s. These all things will be come in the Treaty of Versailles. It's clear? It's clear? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Now students, we are coming on the next topic, that is the effect of the war. उस war का क्या effect हुआ? Can anybody tell me? आप बता सकते हो जो war हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई उसके बाद जर्मनी की जो कंडीशन थी पूरी तरह वर्स्ट हो चुकी थी, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? स्पीक अप. मैम फाइनेंशियल लॉस हुआ था. मैम उनके गवर्नमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ा. ओके, वेरी गुड, नाइस वन. इट मींस हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट और सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे. Yes, ma'am. Yes. Just open your book and see in the book there is some important lines which are related to the effect of the war. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि what were the effects of war? Just write down this question in your book, page number 52. Write down what were the effects of the war. Done? Everybody have written? No, ma'am. तो जल्दी से लिखो, डू फास्ट. क्वेश्चन किसी भी वे में आ सकता है बेटा, ऐसा नहीं है कि एक
क्वेश्चन का स्टेटमेंट चेंज नहीं हो सकता, स्टेटमेंट चेंज हो सकता है. The question is, what were the effects of the war? क्वेश्चन इस स्टेटमेंट में भी आ सकता है. The First World War left a deep, just I am speaking, just listen carefully कि किस वे में ये क्वेश्चन और भी आ सकता है. The First World War left deep impact on European society. Explain it या justify it. Is it clear? अब आप बताएंगे फर्स्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? Speak up. इकोनॉमिकल कंडीशंस पे. सबसे पहला इम्पैक्ट हम बात करेंगे पॉलिटिकल इम्पैक्ट. वी विल टॉक अबाउट द political impact. Here there's some impacts are there, but first of all we will talk about the political impact. The continent of Europe had become a debtor country from a creditor. आपको पता है यूएसए शुरू से, यूरोप जो है शुरू से क्या रहा है? क्रेडिटर रहा है. वो हमेशा हर कंट्री की हेल्प करता है और उनको क्या देता है? क्रेडिट देता है, यानी पैसे उधार देता है. बट जब वॉर हुई तो उसके बाद वो क्रेडिटर से क्या बन गया? डेप्टर बन गया. डेप्टर, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्टर? मैम जो उधार लेता है. मैम जो कर्ज लेता है उसके पास भी पैसे नहीं रहे, उसके पास भी वेल्थ नहीं रही. एंड Weimar Republic had to pay the price of war as compensation. यहाँ पर जर्मनी जो था उसको पूरी तरह से क्या माना गया? उसको पूरी तरह से कहा गया कि ये जो वॉर हुई है इसका जो रीजन है वो कौन सी कंट्री है? जर्मनी है. जर्मनी की वजह से ही ये क्या हुआ है? ये वॉर हुआ है. और जो यूरोप है वो डेप्टर से क्या क्रेडिटर से क्या बन गया है? डेप्टर बन गया है. एट दैट टाइम the Weimar Republic was to pay the price of war as a compensation. उन्होंने कहा कि जो Weimar Republic है वो compensation देगा इस war का. And socialists, Catholics and Democrats supported the Weimar Republic. Socialists जो थे, Catholics जो थे, Democrats जो थे, वो किसको सपोर्ट कर रहे थे? Weimar Republic को. And they were called November criminals. और उनको क्या कहा जा रहा था? क्या कहा जा रहा था उनको? नवंबर क्रिमिनल. किसको कहा जा रहा था? Weimar Republic को. Is it clear? Yes ma'am. यस. Since they became easy target of attack in the conservative circles. मैं आपको कंजर्वेटिव के बारे में, इसके अलावा लिबरल्स के बारे में और सोशलिस्ट के बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर में बात करेंगे. जब हम रशिया पे आएंगे तब मैं आपको तीनों चीजें क्लियर करूंगी. व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरल, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिस्ट. इज इट क्लियर? नाउ जस्ट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द Weimar Republic. की जो Weimar Republic था उसको पूरी तरह से क्या माना जा रहा था? That they have been paid for its sin of the old empire and the republic carried the burden of the war guilt and national humiliation. And the financially crippled by their forced to pay compensation. उनको क्या देना होगा? Compensation देना होगा इस war का. What do you mean by compensation? मैम जो डैमेजेस हुए हैं उसके लिए सारा पैसा देना पड़ेगा. बिल्कुल. Very good. Nice answer. Those who support the Weimar Republic, they were Catholics, Democrats, and Socialists. Their target was to attack in the conservative nationalist circle, and they were known as the November criminal. Is it clear? Now, second point is coming for the social impact. इस war का second impact किस पे पड़ा? Social impact पड़ा. Social impact का मतलब soldiers जो थे they worshipped in the society after the war. जब भी लड़ाई होती थी तो soldiers जो थे वो क्या करते थे? पूजा करते थे, worship करते थे. And media glorified trench life. और कैसी लाइफ जी रहे थे वो? trench life. What do you mean by trench life? डरी हुई. कैसी? miserable life. Yes ma'am. हाँ, उनकी जो जिंदगी थी वो मिजरेबल थी. ट्रेंच का मतलब होता है क्या कर देते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी आर्मी फोर्स होती है जब वो चुपचाप लड़ने के लिए जाती है तो वहां पे छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं. छोटे छोटे क्या बनाए जाते हैं? ट्रेंचेस बनाए जाते हैं और उनमें बैठ के वो फायरिंग करते हैं. देखा है आपने?
Yes, ma'am. तो वो जो होल्स होते हैं जिनमें वो बैठ के फायरिंग करते हैं, दैट इज नोन एज अ ट्रेंचेस। और वो जो ट्रेंचेस होते हैं वो मोस्टली किसके होते हैं? रैट्स के होते हैं। रैट्स भी उन ट्रेंचेस में से निकल रहे होते हैं, उनको काट रहे होते हैं, उनको काफी परेशान कर रहे होते हैं। सो these all things were the life of the soldiers were very miserable, and they lived miserable life in the trenches during the war, and they were propaganda and national honor was given more importance, giving popular support to conservatives. Is it clear? This was second impact, social impact. क्या पढ़ा कि जो politicians थे, जो publics थे, they laid great stress on the need for men. They were very aggressive, strong and masculine, and the media glorified trench life. And the truth, however, was that soldiers lived miserable life in the trenches, and they trapped with rats feeding on corpses. आपको पता है जो उनकी लाइफ थी वो इतनी ज्यादा मिजरेबल थी, इतनी ज्यादा टॉर्चर वाली थी कि जो रैट्स होते थे वो रैट्स होते थे जो किनको खाते थे? कोरल्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कोरैप्सिस एंड कोरल्स? कोरैप्सिस क्या होती हैं? कॉप्सिस क्या होती है बेटा? मैम रिपीट। जो लाशें होती हैं, जो लोग मर जाते हैं, उनको corpses कहते हैं। तो the rats were be feeding that corpses, and the soldiers lived very miserable life. Is it clear? ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई? Have you understand what I am saying Yes, about ma'am. the effect Yes, of ma'am. the war? Yes, Is it ma'am. clear? First point was the political impact, second point was the social impact, and now we are coming on the problems before the Weimar Republic. Weimar Republic के सामने कौन कौन सी परेशानियां आई, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, बता सकते हैं हम? Can you explain me? Can anybody explain me about the problems before the Weimar Republic? Nobody can. अभी तो समझाए थे मैंने इतने सारे. First one was the government faced many problems. Yes, speak up. Yes, speak up, beta. Speak up. Good. मैम कंपेंसेशन देना पड़ता था एक तो. Very good. Economic condition कैसी हो रही थी कंट्री की? मैम बहुत ही गंदी हो रही थी वहाँ पे. सबसिस्टेंस क्राइसिस. Very good. Nice one. Nice one. Anybody else want to say something? मैम वहाँ की मीडिया में वो ट्रेंच लाइफ जीती थी. Okay. मैम कॉन्स्टिट्यूशन पे भी वो इम्पैक्ट पड़ा था जर्मनी का. Okay. उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो जर्मनी की पुअर होती जा रही थी. यूएसए जो था वो भी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में आ चुका था. ये हम सब बात कर चुके हैं. 1932 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था जर्मनी का वो क्या हो चुका था? रिड्यूस हो चुका था. 1931 में 6 मिलियन पीपल जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे. एंड द सर्कमस्टांसेस एंड सोशल डिसकंटेंट एंड वायलेंस डेवलप्ड रैपिडली. जो सर्कमस्टांसेस थे, सोशल डिसकंटेंट थे और जो वायलेंस था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था. एंड द कम्युनिस्ट पार्टी वाज कंडेमिंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम. और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो किसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो रही थी? कैपिटलिस्ट सिस्टम को. इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Jatin, you want to ask about the Treaty of Versailles? Yes, ma'am. Okay. Treaty of Versailles में सबसे पहला जो point आएगा, that was the Allies was a harsh and humiliating peace. Germany lost its overseas colonies. Germany हार चुका था Allies group से. तो उसको क्या करना था? उसको उसका कंपेंसेशन भरना था. किस चीज का कंपेंसेशन देना था? क्योंकि जो अलाइज ग्रुप थे वो ये मान रहे थे कि जो वॉर जो हुई है इसमें जितनी भी हम लोगों ने चीजें खोई हैं, जितना भी लॉस हुआ है हमें, वो किसकी वजह से हुआ है? जर्मनी की वजह से हुआ है, वेमायर रिपब्लिक की वजह से हुआ है. सो उन्होंने ब्लेम किसको किया? वेमायर रिपब्लिक को और जर्मनी को. और उन्होंने ये कहा कि जो
जर्मनी है उसे अपनी कॉलोनीज, अपने पॉपुलेशन का 10% जो 10% जो पॉपुलेशन है वो हमें देनी होगी, 13% टेरिटरीज देनी होगी, 75% जो आयरन जो वो क्या करता है प्रोड्यूस करता है वो भी हमें देना होगा, 26% कोल किसको देना होगा, फ्रांस को देना होगा, पोलैंड को देना होगा, डेनमार्क को देना होगा, लिथुनिया को देना होगा। इज इट क्लियर? इसके थ्रू उन्होंने जर्मनी की पावर को क्या कर दिया, बिल्कुल जर्मनी की पावर को वीकन कर दिया। उन्होंने उनकी जो मिलिट्री थी उसको पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया। All these points will be come in this Versailles Treaty. Is it clear? जतिन समझ में आ गया? एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम यहाँ पर Thank you, एक मैम यहाँ पर एक वर्ड है डेमिलिटराइज्ड। Can you tell me the page number? पेज नंबर मैम, पेज नंबर नहीं है मैम, ये नोट्स में है। नोट्स जो मैंने नोट्स दिए उनमें है? नो मैम। फिर तो how can I tell you कि क्या वर्ड है? Can you tell me the spelling of that word? यस मैम। मैम DEMI LI DEM मैम DEMI। हाँ हाँ बोलो, I am listening बेटा। Yes, my voice is audible for you. यस मैम LI demilitarized ना? यस मैम। डीमिलिटराइज का मतलब जो मिलिट्री पावर थी उनको पूरी तरह से हटा दिया, डीमिलिटराइज कर दिया, हटा देना, मिलिट्री की पावर को पूरी तरह डिमोलिश कर देना। इज इट क्लियर? यस मैम। ये हमारी बुक में भी है, ये आपके नोट्स में ही नहीं है, हमारी बुक में भी है और मैंने आपको अभी बताया था। इज इट क्लियर? डीमिलिटराइज का मतलब होता है मिलिट्री पावर को पूरी तरह से क्या कर देना, अपने हाथों में ले लेना, उनको पूरी तरह से डिमोलिश कर देना। जो अलाइड पावर थी उन्होंने जर्मनी की जो जो मिलिट्री थी उसको पूरी तरह से डीमिलिटराइज कर दिया, उसकी पावर को पूरी तरह से वीकन कर दिया। इज इट क्लियर? यस मैम। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फेलियर ऑफ वीमायर रिपब्लिक। जो वीमायर रिपब्लिक था वो पूरी तरह से फेलियर क्यों हो गया? उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझा देती हूँ, द पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस? कैन यू टेल मी? कैन एनीबॉडी टेल मी अबाउट द रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस? मतलब इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी उनका जो सिस्टम है वो पुअर होता जा रहा था। क्यों होता जा रहा था? जर्मनी का इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी जो क्राइसिस था वो बढ़ता क्यों जा रहा था? इसका रीजन क्या रहा? मैम जर्मनी डिफीट हो गया था इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे। जर्मनी पूरी तरह से डिफीट हो चुका था और जो वीमायर रिपब्लिक जो था उसमें भी रिवॉल्यूशन क्रिएट होने लगा। जो सोवियत वर्कर्स थे और जो सेलर्स थे, they were be the established the many cities and political atmosphere in Berlin was charged with the demands of Soviet style governance. They opposed the socialist, democratic and Catholic। और किसको वो अपोज कर रहे थे? वो वीमायर रिपब्लिक को भी अपोज कर रहे थे। और जो वीमायर रिपब्लिक था वो धीरे धीरे किसके हाथ में जाने लगा? धीरे धीरे वो किसमें कन्वर्ट होने लगा? बोलिए। उसकी जो कंडीशन थी, जो वीमायर रिपब्लिक की जो कंडीशन थी वो कैसी हो गई थी? वो पूरी तरह से वर्स्ट हो चुकी थी। किसके हाथ में जाने लगा था? वो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ से और सोशलिस्ट पार्टी के हाथ से कहाँ जाने लगा था? कैपिटलिस्ट बनने की तैयारी करने लगा था, यानी कैपिटलिस्ट में कन्वर्ट होने लगे थे। जर्मनी जो था, they had fought the war largely on the loans and had to be reparation in the gold. They depleted the gold reserve at the time of scars. 1923 जर्मनी refused to pay। अब जर्मनी की कंडीशन इतनी वर्स्ट हो चुकी थी कि उन्होंने अपना पेमेंट देने से, जो उनको कंपेंसेशन देना था उसको देने से उन्होंने अब क्या कर दिया? मना कर दिया। उन्होंने कहा अब ये कंपेंसेशन देना हमारे लिए नहीं पॉसिबल है। इवन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी इन जर्मनी, दैट पेव्ड द वे टू द हिटलर। धीरे धीरे वो किसकी तरफ बढ़ने वाले थे? अब
हिटलर की तरफ, एंड पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923. 1923 में पूरी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका था. इज इट क्लियर? इज इट Yes, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर इन्फ्लेशन? आपकी बुक में पेज नंबर 54 पे कुछ लाइंस दी हुई हैं. First point is that in April the US dollar was equal to 24,000 marks. In July that was in August 4,621,000 marks, and at the mark of December the figure had run into trillion. The value of the mark collapsed, prices of goods soared, and the image of Germany carrying cartload of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy. Here, this crisis came to be known as hyperinflation, and the situation when prices rise phenomenally high. इसका मतलब क्या है? Can you tell me? देखो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी तो क्या होगा? हाँ अनुष्का, व्हाट डू यू वांट टू से? अनुष्का, यू वांट टू से समथिंग? मैम वो हाइपरइन्फ्लेशन का था. हाँ बताओ क्या होगा हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब? मैम बताएं. मैम it occurs when prices have risen by more than 50% per month. Yes, the prices, the condition of the situation of the country was very worse. The Germany condition was very worse, and the prices of the things were rapidly increased. बहुत तेजी से क्या हो रहे थे? बढ़ रहे थे. तो बहुत ज्यादा क्या आ रहा था? हाइपर, चीजों में प्राइसेस जो थे, थिंग्स के जो प्राइसेस थे, चीजों की जो प्राइसेस थे, जैसे ब्रेड थी. ब्रेड एक क्या थी वहां की? ब्रेड कैसा फूड था वहां का? स्टेपल फूड था. और ब्रेड की प्राइसेस क्या हो गई थी? एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. जो गरीब लोग थे, जो पुअर पीपल थे, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. नितेश, यस मैम. बोलो बेटा. मैम वो आपने बताया था ना कि यूरोप में मैम बहुत ज्यादा लॉसेस हुए थे, तो उन्होंने जर्मनी से वो मैम को 26% और 1/10 पॉपुलेशन ली थी. वो कंपेंसेशन था, वो लिया नहीं था, वो कंपेंसेशन दे रहा था जर्मनी. जर्मनी की जो कंडीशन थी वो पूरी वर्स्ट हो चुकी थी, और इस लड़ाई का जिम्मेदार किसको मान रहे थे? जर्मनी को. और जर्मनी को इसका जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल मानने की वजह से उन्होंने उनसे ये सब चीजें क्या की थी? एज अ कंपेंसेशन ली थी. ये कहा था नितेश मैंने. अब बोलो आगे. मैम यूरोप को थोड़ी ना कोई लॉस हुआ था. नहीं, यूरोप की भी कंडीशन तो खराब हो गई थी. वॉर 7 इयर्स तक अगर वॉर चलेगी तो आप सोचो कि क्या कंडीशन होगी उस कंट्री की. क्या उनको वेपन्स के लिए पैसे नहीं चाहिए? क्या उनको सोल्जर्स के लिए, क्या उनको मिलिट्री के लिए पैसे नहीं चाहिए? मैम तो जर्मनी ने 1/10 पॉपुलेशन में यूरोप में दी थी. बिल्कुल, उन्होंने उन सबको दी थी. लग्जमबर्ग, और मैंने आपको कंट्रीज के नाम बताए थे, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, लिथुआनिया, इन सबके लिए मांगा था. उन्होंने कहा था यहाँ पर जिस तरीके से वॉर हो रही है, उस वॉर में क्या चाहिए हमें सोल्जर्स चाहिए, हमें पीपल्स चाहिए वहां पे लड़ने के लिए, हमें पैसे चाहिए, हमें सोल्जर्स को खाना देने के लिए पैसे चाहिए, हमें जो हमारे पास वेपन्स हैं उनके लिए हमें पैसे चाहिए. ओके मैम. Okay, any confusion? नो मैम. Okay, fine. Now the year of depression. अब एक next topic आ गया है हमारा कि year of depression कैसे start हुआ. उससे पहले मैंने आपको जो सारा जर्मनी का जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि जर्मन एम्परर जो था, जर्मनी जो था वो पूरी तरह से डिमोलिश हो चुका था. वो पूरा अंडर डेप्थ में आ चुका था. जर्मनी जो था वो लड़ाई करने से बहुत डर रहा था, और वो उन सब चीजों को देने से अब डर रहा था, क्योंकि कंपेंसेशन देना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके पास भी क्या नहीं था, उसके पास लड़ने के लिए क्या नहीं था? मनी.
मैम सोल्जर्स और वेपन्स मनी नहीं और थी। मिलिट्री। बिल्कुल इसके पास वेपन्स नहीं थे। धीरे धीरे हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा था, धीरे धीरे प्राइसेस जो थी वो बढ़ती जा रही थी, पूरी तरीके से जो सब चीजें थी वो पूरी तरह से कोलैप्स होती जा रही थी। इवन उनके पास मिलिट्री सोल्जर्स भी क्या हो गए थे, नहीं रहे थे। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी कम इन द ईयर, सॉरी इन द in the topic of the political radicalism and the economic crisis. That will become in the economic crisis. These all things will become in the economic crisis. Now we are coming on the year of depression. कुछ साल ऐसे रहे जिसमें लोग पूरी तरह से डिप्रेशन में आ चुके थे। देखो सिंपल सी बात है, जब लड़ाइयां होती हैं, लड़ाई होने पे आप लोगों को भी पता है, सबको पता है कि लड़ाई जब होती है तो नुकसान ज्यादा होता है, चाहे ह्यूमन बीइंग का नुकसान हो, चाहे वेपन्स का नुकसान हो, चाहे टेरिटरी का नुकसान हो, लेकिन उनसे क्या होता है, उनसे लोग जो है पूरी तरह डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उस टाइम वहां की जो कंडीशन थी, केवल जर्मनी की नहीं, जर्मनी के अलावा और भी कंट्रीज की जो कंडीशन थी वो पूरी तरह से वर्स्ट हो चुकी थी। At that time, the year between 1924 to 1928, there saw some stability. वहां पर क्या देखी गई, थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखी गई। And this was built on sand. ये स्टेबिलिटी कैसे थी, जैसे सैंड पे क्या बना दिया जाए, सैंड का घर बना दिया जाए। सैंड का घर कैसा होता है, फूक मारते गिर जाता है। बिल्कुल। तो कंडीशन वही थी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती थी, फिर वापस से कंडीशन पुअर हो जाती थी, फिर स्टेबिलिटी आती थी, फिर कंडीशन पुअर हो जाती थी। सो द जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर totally dependent on short term loan that largely from the USA. ये लोन कहाँ से लिए जा रहे थे, यूएसए से लिए जा रहे थे। and the support was withdrawn when the Wall Street exchange crashed. यूएसए ने ये सारे लोन देने से मना कर दिया। कौन से ईयर में मना किया उसने कब मना किया, जब यूएसए की कंडीशन भी पूरी तरह से वर्स्ट हो गई। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, कैन यू एक्सप्लेन मी अबाउट द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज? मैम स्ट्रीट्स पे जो सेल की जाती है गुड्स, जो गुड्स बेचे जाते हैं, दैट इज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। एनीबडी एल्स? Can anybody explain me what is the meaning of Wall Street Exchange? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज को मैम यूएसए में मैम सबसे यूएसए ज्यादा में जो स्टॉक, सबसे बड़ी स्टॉक्स की एक्सचेंज। बिल्कुल स्टॉक exchanges The होती है। name of the world biggest stock exchange located in the USA. बिल्कुल। तो ये जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, ये जो पूरा मार्केट था पूरी तरह से डिमोलिश हो गया वॉर की वजह से। 1929 में यूएसए की कंडीशन जो थी वो पूरी तरह वर्स्ट हो चुकी थी। एट द टाइम द यूएसए अपोज्ड अबाउट the credit to the any country, and fearing a fall in prices, people made frantic effort to sell their shares. At that time, on 24th October, 13 million shares were sold. कितने मिलियन शेयर्स बेच दिए गए? हमारा जयपुर का कहाँ पर है शेयर मार्केट? आप जानते हैं एक्सचेंज मार्केट कहाँ पर है हमारा? आप जीटी जाते हैं? जीटी में आपको कई बार आप लोगों ने देखा होगा शेयर एक्सचेंज मार्केट लिखा रहता है। यहाँ पर शेयर्स का क्या होता है, शेयर एक्सचेंज मार्केट होते क्या है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मार्केट होता क्या है? मैम इसमें मैम एक प्रॉपर्टीज का एक्सचेंज होता है। प्रॉपर्टीज का, और मैम लार्ज कंपनीज को पैसे चाहिए होते हैं उन्हें अपनी कंपनी चलाने के लिए, तो वो लोगों उसमें शेयर डालते हैं, इसलिए वो अपना मार्केट ऊपर करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये सब जो चीजें होती हैं ये फायदा भी देती है, नुकसान भी देती है। डू यू नो दैट? इनसे प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है कि नहीं होता है? सो यूएसए की कंडीशन बहुत पुअर हो चुकी थी। 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स जो थे वो पूरी तरह से बिक चुके थे, सोल्ड हो चुके थे। एंड दिस वाज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये किसकी स्टार्टिंग थी?
ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की स्टार्टिंग थी. And the next 3 years between 1929 to 1932, the national income of the USA fell by half. कितनी हो गई नेशनल इनकम यूएसए की? कितनी हो गई people? हाफ हो गई. And factories shut down, factories बंद हो गई. And export fell, export पूरी तरह से गिर गया. फार्मर्स की कंडीशन पूरी तरह से पुअर हो गई. स्पेकुलर्स जो थे, स्पेकुलेटर्स जो थे, वो पूरी तरह से, जो मार्केट था वो पूरी तरह से गिर चुका था. पैसे पूरी तरह से गिर चुके थे. मनी पूरी तरह से विड्रॉ हो चुका था. एंड द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड. एंड जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस. 1932 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो रिड्यूस हो गया 40% तक. यानी इंडस्ट्रीज जो थी अब धीरे धीरे क्या होने लगी थी? बंद होने लगी थी. और वर्कर्स जो थे वो अपनी जॉब को क्या कर चुके थे? खो चुके थे. वो क्या हो चुके थे? अब अनएम्प्लॉयड हो चुके थे. एंड द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी यू कुड सी men with placards around their necks saying willing to do any work. वो कोई भी काम करने को तैयार थे. इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका था. इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी एंड फियर इन द पीपल. लोगों के मन में बहुत ज्यादा एंजाइटी और डर बैठ गया था. एंड मिडिल क्लासेस, स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स, सॉ देयर सेविंग डिमिनिश एंड द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू. और करेंसी जो थी वो अपनी वैल्यू पूरी तरह खो चुकी थी. इवन जो सैलरी पेड जो एम्प्लॉयज थे वो पूरी तरह से डिमोलिश हो चुके थे. पेंशनर्स जो थे वो अपनी पेंशन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे. और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जो थे, स्मॉल बिजनेसमैन जो थे, रिटेलर्स जो थे, वो भी क्या कर रहे थे? इसको पूरी तरह सफर कर रहे थे. इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी. अब कंडीशन ये आ गई थी कि जो वेमायर रिपब्लिक था वो पूरी तरह से क्या हो चुका था? वो पूरी तरह से फेलियर हो गया था. क्यों? पॉलिटिकली द वेमायर रिपब्लिक वाज वीक. वेमायर रिपब्लिक जो था पूरी तरह से वीक हो गया. रियान, यू वांट टू से समथिंग? नो मैम. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. The Weimar Republic was weak and the constitution had made unstable, and the proportional representation led to the formation of coalition government, and they also declared Article 48. उन्होंने कौन सा आर्टिकल डिक्लेयर कर दिया? Article 48. In that they gave the president the power to impose the emergency and suspend civil rights and rule by decree. Article 48 में क्या होता है? पूरी पावर किसके हाथ में चली जाती है? बताइए. जो पूरी पावर President. के हाथ में चली जाती है. और आपके जितने भी सिविल राइट्स होते हैं उनको आपसे क्या कर लिया जाता है? छीन लिया जाता है. ओके. तो सारे जो जितने भी राइट्स थे, जितनी भी सिविल राइट्स थे, वो लोगों से छीन लिए गए. प्रेसिडेंट पावर को क्या कर दिया गया? वहां पर लगा दिया गया. And people lost confidence in this parliamentary system which could not manage their country well. अब वो पूरी तरह से क्या हो चुके थे? वो पूरी तरह से अपना कॉन्फिडेंस खो चुके थे, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो थी वो पूरी तरह से क्या नहीं कर पा रही थी? कंट्री को मैनेज नहीं कर पा रही थी. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी. फिर उसके बाद हिटलर आ रहा है, उसके बाद हिटलर की एंट्री हो जाएगी. यहां तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, जल्दी से बताओ. पहले तो आप ये बताना मुझे, हिटलर का चेहरा कैसा था? हिटलर दिखता कैसा था? हाउ ही वाज इन लुकिंग? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी? गुस्से वाला था. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो? उसका फीचर बता सकते हो? किस तरीके का पर्सनालिटी थी वो? मैम बहुत ही अकड़ू था. बहुत अकड़ू था. और उसके जेठालाल जैसे मूछें थी. सॉरी बेटा, अनुष्का आवाज नहीं आ रही. व्हाट यू वांट टू से? दृष्टि व्हाट यू वांट टू से बेटा? मैम उसकी मूछें मॉस्टेक थी. और एनीथिंग एल्स? जेठालाल जैसी थी.
उसकी हाइट वगैरह कैसी थी, उसकी पर्सनालिटी कैसी थी? He was very strict. He was very strict. Anything else? Sachin, you want to say something? Sachin? मैम एरोगेंट था बहुत. एरोगेंट था. अच्छा, वो किस फैमिली से बिलोंग करता था? कैसी थी उसका फैमिली बैकग्राउंड, कैसा था? डू यू नो दैट? मैम वेरी पुअर. वेरी पुअर. ओके. एनीथिंग एल्स? वो मैम हमारे ये पड़ोस हिटलर आया तो ये डिक्टेटरशिप हो गई ना. डिक्टेटरशिप तो थी उस टाइम जब हिटलर आया. हिटलर तो था ही डिक्टेटरशिप, उसकी पर्सनालिटी में डिक्टेटरशिप थी. मैम मैम इसकी वजह से पूरी जर्मनी डूब गई थी. हिटलर. चलिए कल आप लोग थोड़ा सा हिटलर के बारे में पता करके आना, हिटलर क्या था. यस मैम. ठीक है ना? खड़ूस था वो. अकड़ू था. दिस इज नॉट अ गुड. मर्जी चलाता था. हमारे पड़ोस वाले अंकल की तरह था. ऐसे नहीं बोलते. डोंट से लाइक दिस बेटा. लिसन ऑल ऑफ यू. Tomorrow I will ask the question about the Hitler and you will read the chapter from the page number 56, the Hitler rise to power, and last one you will read page number 60. The page number 60, reconstruction. Is it clear? You will read these 4 pages, page number 56, 57, 58, 59 and 60. Okay? And now I am taking your attendance. Are you ready for giving the attendance? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि आप सबको अटेंडेंस की ज्यादा जरूरत है ना? है क्या आप लोगों को अटेंडेंस की जरूरत, या रहने दूं? तो एक बार आपकी मर्जी. मेरी मर्जी. अगर मैं एब्सेंट लगा दूंगी तो? मैम ले लो. मैम ले लो एक बार तो. हाँ, अगर मैंने एब्सेंट लगा दी तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. लग जाएगी. 5 नंबर 9th A class, 9th A. Are you ready? Yes, ma'am. Please don't talk. 9th A class. Roll number 1. You know your roll number? No. Ajay Singh Bhati. Ajay Singh Bhati. Aniket Chaudhary. Aniket Chaudhary. He is also absent. Anshul Nitharwal. Present, ma'am. Okay, Anshul. After Anshul, Anushka Dhingra. Present, ma'am. Okay, beta. Chinmay. Present. Okay, Chinmay. Divyansh. Divyansh Magnani. Drishti Madnani. Gauri Meena. Present, ma'am. Fine, beta. After Gauri, Harsh Gupta. Present, ma'am. Okay. No, ma'am. I am Drishti. हाँ, दृष्टि मैंने लगा दी आपकी. Okay, ma'am. आज प्रताप सिंह. Yes, ma'am. हिना इलानी. Present, ma'am. हिया अटल. आफ्टर किसका नहीं लिया? मैम गुंजन. ओके. जयप्रकाश. जया. Present, ma'am. केशव. किरण. Present, ma'am. Present, ma'am. ओके. मीत बलानी. अरे मीत, आज आपने एक भी सेंटेंस यूज नहीं किया, आज आप एक वर्ड नहीं बोले. ओवेश. नंदिनी. Present, ma'am. नेहा खानवानी. Present, ma'am. ओके बेटा. निखिल सोनी. पार्थ गुप्ता. पायल साहू. रिया शर्मा. रूपाक्ष. सचिन. Present, ma'am. ओके सचिन. साहिल बागड़ी. साक्षी. फाइन साक्षी. ओके बेटा. शुभी बंसल.
स्नेहा शर्मा, ओके ओके बेटा, स्नेहा। वंश, प्रेजेंट मैम। विशाल, युवराज, कृष्णम, Present, ma'am. okay, fine beta. Now we are coming on second section, 9th B. गुंजन, आपका 9th A में नाम क्यों नहीं है? बी में होगा। गुंजन, मुझे 9th A में आपका नाम कहीं दिखाई नहीं। गुंजन, यू आर इन 9th A ना? Yes, ma'am. पता नहीं आपका नाम क्यों नहीं है, आई डोंट नो, बट मैंने अटेंडेंस लगा दी है गुंजन। शायद पहले भी मैंने आपसे बात की थी इस बारे में, है ना? Yes, ma'am. चलो, नाउ वी आर कमिंग ऑन 9th B. यस, 9th B, अभिषेक मीना, आदित्य कुमार सिंह। Present, ma'am. ओके, देन अक्षिता, अक्षिता सैनी, अनंत शर्मा, प्रेजेंट मैम। ओके, अंकित यादव, Ma'am. अंशु मुद्गल, प्रेजेंट मैम। अनुकृति, Present, ma'am. आर्यन बद्रानी, प्रेजेंट मैम। दिव्यांश, दिव्यांश सैनी, प्रेजेंट मैम। दृष्टि, Present, ma'am. दिव्यांश इज प्रेजेंट, दृष्टि, Present, ma'am. हर्षल माथुर, प्रेजेंट मैम। हर्षल इज देयर, यस मैम। हिमानी, ओके, हिमानी, हितेश, देन Present, ma'am. ईशांत, Present, ma'am. जतिन, प्रेजेंट मैम। करण, करण, क्रिश, रुचि, Present, ma'am. रुचि, Present, ma'am. प्रेजेंट, माही, माही, मैम। फुरकान, मैम आई एम प्रेजेंट। बाकी आपकी, मैम आई एम प्रेजेंट। सिराज, प्रेजेंट मैम। मैम। नव्या, निधि, निधि चिबरमलानी, नितेश, प्रेजेंट मैम। ओके, पराग, पायल, पायल बंसल, पीयूष चंदवानी, पीयूष यादव, प्रेजेंट मैम। पूजा यादव, प्रियांश कोलिया, सॉरी, Present, ma'am. सानी, साक्षी, संजय, सुहानी यादव, Present, ma'am. तनीश पवार, यश कुमावत, प्रेजेंट मैम। यश कुमावत, ओके, यश सोनी, प्रेजेंट मैम। यस मैम। युवराज सिंह चौहान, प्रांजल, प्रेजेंट मैम। नवीन, रियान, रियान, अभी तो था रियान, अक्षत, मयंक, प्रेजेंट मैम। ओके 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 ओके, लगा दी मैंने। कृष्णा, fine students, tomorrow you will read the chapter and which I have given you some worksheets. I provide you worksheet, then you will give the answers of these worksheet and noted down the notes. Okay? Yes, Krish, I have attendance लगा दी। मैम क्वेश्चन आंसर्स की लिंक क्या है? क्वेश्चन आंसर की लिंक जो है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैम कौन सी वेबसाइट? हमारी MCS जयपुर की, जो मालवीय कॉन्वेंट स्कूल जयपुर की वेबसाइट है उसमें। Excuse me, मैम ग्रुप पे आई तो है। तो बस ग्रुप पे आइए तो उसमें से देख लीजिएगा आप लोग। excuse me, ma'am. यस, मैम हमने कल वेबसाइट ऑन सुबह मैंने लगा दी क्या? मैम ने वेबसाइट ऑन तो की थी कल, मैम 9th क्लास में टच भी कर दिया, मैं फिर खुल नहीं रही, बस चैप्टर का नेम आके रह जाता है। चलिए मैं बात करती हूँ, एक बार मुझे प्रॉब्लम बता दी है बच्चों ने। आई विल टॉक टू सर। मैम मैंने भी ट्राई किया था मैम, 10th क्लास में आ रहा था। 10th मैंने भी क्लास ट्राई में किया मैं था। बात कर लेती हूँ। ओके,
मैम 9th का तो सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। यस मैम। मैं सर से बात कर लेती हूँ, देन आई विल टेल यू। ओके बेटा? ओके ऑल ऑफ यू? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. आप कौन सी